कि साडे पंजाब ते पंजाबियां दे उत्ते जिन्हां ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ तिलक ते जंजोई ते रक्षा वास्ते अपना सीस कलम कर दिता। Out of the 2000 people who joined the Indian National Army when army was formed, 60% was Sikhs। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम ये सिखों ने 1925 में 1920 में अपने गुरुद्वारा ब्रिटिश के पिट्ठुओं से आजाद हमने करवा लिए थे अपने गुरुद्वारा पर, जब देश नहीं आजाद हुआ था सब। Out of the 2600 awarded life imprisonment during the freedom struggle, 2147 were Sikhs sir। ये लड़ाई पंजाबियों ने लड़ी। उसके बाद हमारे बॉर्डरों में देश का बंटवारा हुआ, हजारों लाखों सिख हुआ और हिंदू भाईचारों का अपने वहां से उजड़ के सब इधर आए। हमारे पंजाब का बंटवारा हुआ, लड़ाई हमने लड़ी, देश को आजाद करने के लिए कितने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए, और जब देश आजाद हो गया तो पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग राज्य बनाए गए। हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर इंदिरा गांधी के कहने पे जब वहां टैंकों तोपों से चढ़ा के हमारी सबसे जो धार्मिक स्थान है उधर जिस तरीके से टैंकों तोपों के साथ अटैक किया गया, आज 40 साल होने के बाद आज भी हमें तो कोई जस्टिस नहीं मिला। आपके इस नए कानून में सिखों के साथ कहाँ इंसाफ है? एक सिख होने के नाते सा मैं इत्थे दसना चाहांगी कि साडे पंजाब ते पंजाबियां दे उत्ते जिन्हां ਇਹ पुलिस अट्रोसिटीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ सहा हैगा, साडा इतिहास गवाह हैगा सर। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, जिन्हों ने तिलक ने जंजोई ते रक्षा वास्ते अपना सीस कलम कर दिता, अपनी शहादत दी एक दूजे धर्म नूं जिंदा रखने वास्ते। यह साडा धर्म सिखांदा है। आज भी साडे गुरुद्वारियां च सरबत दे भले दी अरदास होंदी है। सो ओदे बाद जे देश की गल करिए, वेदर इट इज प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड टिल डेट, the Sikh community has made the largest sacrifices for this nation and are the most patriotic community, and I would like to highlight a few of these things sir। Independence to pehla 1.5% साडी आबादी सी सिखा दी, 1.5%, 1.5%, and sir sab to zyada sufferings at the hands of majorities this small community। I would like to tell this August House, 77% in the freedom struggle, 77% of all those sent to the gallows, out of which 81% of those, 77% out of the total people sent to gallows, 81% were Sikhs sir। During Quit India movement, when many indiscriminate arrests were made, 70% of those were Punjabis who were arrested। Out of the 2000 people who joined the Indian National Army when army was formed, 60% was Sikhs। Out of the 121 patriots hanged during the freedom struggle, 93 were Sikhs। Out of the 2600 awarded life imprisonment during the freedom struggle, 2147 were Sikhs sir। Out of the 1300 martyred in Jallianwala Bagh, 799 were Sikhs sir। Sir, जब देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम ये सिखों ने 1925 में 1920 में अपने गुरुद्वारा ब्रिटिश के पिट्ठुओं से आजाद हमने करवा लिए थे अपने गुरुद्वारा पर, जब देश नहीं आजाद हुआ था सर। After that, all leaders of every party, be it Pandit Nehru, who said, I salute the Akalis who have started the struggle for freedom and are fighting for it. Sir, this was in 1920 when Jawaharlal Nehru, then who became Prime Minister, later said this. आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, गुरु का बाग मोर्चा has given birth to the freedom movement which must lead us to Swaraj। ये freedom movement हमारे अकाली दल ने शुरू करी थी। Lala Lajpat Rai ji said, freedom is our birthright. The Akalis are the legitimate sons of Mother India who are fighting for her। ये Lala Lajpat Rai ji के words से गए। So in every sphere, I can say that considering we were hardly 1.5% of the population,
ये भी मैं कह सकती हूँ जी, आज पंजाब हिंदुस्तान में है, इसमें भी हमारे मास्टर तारा सिंह जी की इंटरवेंशन, जब when he went to the Muslim League flag atop the Punjab Assembly at Lahore and pulled it down, which saved half of Punjab for India. Otherwise, entire Punjab would have gone to Pakistan, left to Mr. Nehru. And the Yamuna River would have been the dividing line between India and Pakistan. So, sir, ये लड़ाई पंजाबियों ने लड़ी, उसके बाद हमारे बॉर्डरों में देश का बंटवारा हुआ, हजारों लाखों सिख और हिंदू भाईचारों का अपने वहां से उजड़ के सब इधर आए। एंड लेकिन सर, ये सब होने के बाद व्हाट डिड वी रिसीव पोस्ट इंडिपेंडेंस? ऑल काइंड्स ऑफ अट्रॉसिटीज बाय द स्टेट। हमारे पंजाब का बंटवारा हुआ, लड़ाई हमने लड़ी, देश को आजाद करने के लिए कितने बड़े सैक्रिफाइसेस दिए, और जब देश आजाद हो गया तो पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग राज्य बनाए गए, हमारे को राजधानी नहीं दी गई, हमारा पानी खो के दूसरे राज्यों को दे दिया गया अगेंस्ट रिपेरियन प्रिंसिपल्स। हर तरीके से पंजाबी स्पीकिंग गांव को दूसरे। सर प्लीज, अब तो कोई ऑपोजिशन नहीं है, अब तो आज टाइम दे दीजिए। बिल पर बोले इतना मैं आ रही हूँ उस पर सर, मैं अट्रॉसिटीज की बात कर रही हूँ कि कानून कितना जरूरी होता है। उसके बाद सर, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड का क्या कैसे हुआ? वो हमारे अकाल तख्त साहब के ऊपर इंदिरा गांधी के कहने पे, जब वहां टैंकों तोपों से चढ़ा के हमारी सबसे जो धार्मिक स्थान है उधर जिस तरीके से टैंकों तोपों के साथ अटैक किया गया, गुरपुरब के दिन जब वहां पे श्रद्धालु थे उनके कत्ल करके सारा सरोवर लाल कर दिया खून से। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, जब प्रधानमंत्री अपने ही लोगों के ऊपर, तो क्यों आज तक इंदिरा गांधी के ऊपर क्यों कोई कानून नहीं लगा? उसके बाद जब हमारे दिल्ली में 84 का जेनोसाइड हुआ सर, तो कितने हमारे सिख लोग के कत्लेआम शरेआम हुआ, सारा देश जानता है, ये कांग्रेस की देन। आपको हैरानी होगी, एक एफआईआर, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुआ, तो क्यों आज 40 साल होने के बाद आज भी हमें तो कोई जस्टिस नहीं मिला? आपके इस नए कानून में सिखों के साथ कहाँ इंसाफ है? कौन सा वो पॉइंट है, मुझे बताएं जरा गृह मंत्री जी, वो कौन सा है जहां 40 साल बाद हमें इंसाफ मिले? और सर, यही मैं कहना चाहती हूं कि हमारे सिखों के जब धार्मिक स्थानों पे अटैक हुआ, हमारे कत्लेआम हुए, कोई वहां पे किसी को सजा नहीं मिली, कोई एफआईआर नहीं लगाई गई, कोई हमारे बहनों के साथ जो रेप हुआ, कोई हमारी सुनवाई जब कहीं नहीं हुई।